Assalamu alaikum everyone. Mariam Adil here, Deputy Director Assessment and Examination. I hope you can all hear my voice. Am I audible to you? If yes, please raise your hand. Okay, ji. Thank you so much. Thank you so much. So let us start formally. I have got with me my senior school team. I have Saima Wahid. She is a specialist in physics. And I have got with me Tayyiba Malik. She is expert in biology. And I myself, I am dealing with the senior school section. So let us formally start with the presentation. This will be the sequence of presentation. First of all, we are going to talk about the main agenda points of the academic package at senior school. Then the assessment framework that is going to be followed for the whole academic session. The changes that have been brought in the practical-based assessment, that is PBA. What will be the next methodology, especially for class 9th and first year, according to the new curriculum. We are also going to talk about the revision and test series plan that you have been doing previously and what changes you are supposed to bring in it. How to go about the entry test preparation. You all know that NUMS entry test is going to be conducted very soon after the result, or most likely somewhere before the result. So we are going to share with you some instructions regarding the entry test preparation as well. Then the section heads, the subject coordinators, how to go about the result analysis, how to provide the quality feedback to the students as well as to the parents during the PTMs. What is going to be our way forward? Our way forward as well as the way forward that has been shared by the FBIC and is expected to be implemented very soon. And at the end, we are going to talk about the latest FBIC policy procedures. Few of them are latest, few of them are also the way forward, and few of them are there already in place, in practice, but with slight changes expected during this session. So we are going to share all these things in detail one by one. The first part, that is the academic package and assessment framework, that will be handled by Tayyiba. So over to Tayyiba. Ji, aage kijiyega. Next, ji. Assalamu alaikum everyone. Yes, these are the main points which are there in the assessment policy. First of all, the assessment, class assessments and test series and the first term and pre-board of the assessment framework. Almost it will remain the same, practiced in the as such, they were practiced in the previous year as we are following the examination, FPIC examination policies. Then instruction related to skill-based assessments that are including reading, speaking, listening skills for both English and Urdu, Tarjumatul Quran and PBAs. They've also been added in the policy booklet, right? Skill-based assessment, regarding reading, speaking, listening, and skill for both for Urdu and English. Still, we are waiting for the notification and instruction from FPISC. But we are going to start these assessments and informal assessments in our 9th and first year classes, which will be discussed later in the slides. I'll be sharing the details of these skill-based assessment towards the end. जो हमारा way forward वाला component आएगा, so I'll be sharing the details of these components. Then all the doubts and ambiguities about the FPIC admissions policies and the promotions and detentions, they will be clarified and has been already clarified in the policy and will be discussed later on. Then revised assessment framework related to practicals, that is PBAs, they have been added in the policies and will be discussed later. Then the record sheets, which will be maintained by the subject teachers, they have been developed, revised, and also they are incorporated into the teacher's planner. And their formats will be discussed in the later slides too. Similarly, the formats regarding the record of PBAs for the lab attendants and the students, the formats are also added in the assessment policies. Then regarding the progress reports, as you know that FPISC is moving to the grade system, so the grades and GPAs will be there against every subject. They will be reflected against every subject, and the scale will be according to the FPISC benchmarks. Next, please. As the previous, it was a previous practice that the class teacher were giving the remarks personality to the student. Now we have developed a personality assessment checklist. And similarly, a CC participation and achievement list is also introduced. And both of these formats are available
for teachers, AIS portal for the recording, and the same will be displayed on students' AIS portal. This is going to help the students out in their university placement as well. And this has been introduced just in order to align our assessment framework with the National Assessment Framework. Because according to the National Assessment Framework, which is available on the National Curriculum Council website, each and every student should be assessed not only in the academics, but also in their holistic development record as well. Proper record is to be maintained. So that is why, in line with the instructions of the NCC, plus the work that has been done by the RNHD department over here in the APSACS Secretariat, these checklists have been developed. We'll be sharing the details towards the later half of the presentation. Okay. Then the MCQs which are given in the as PETs, they will be updated and will be changed according to the new curriculum, which will be based on NC 2022. It is already in the working condition. Then SOP for regional question bank, it has been revised. Most of the regions have given the question item banks and they have shared with us. Once it will be compiled, it will be shared and it will be the teachers will get access to QIB portal after the senior school teachers training, after they will get trained. Next, please. Yeah. As far as these three components are concerned, that is, the first one is the Academic Excellence Award. You already know that the position holders in FBIC, they are provided with APSACS awards. So this year again, inshallah, they will be provided with the awards during the Excellence Awards ceremony. However, the SOP has been revised. Now, two types of ceremonies will be held. The first one will be the centralist ceremony, and that will be conducted for the regions of the Rawalpindi-based regions and Islamabad-based regions over here in Rawalpindi. And inshallah, whenever we'll get the award award of positions in FBIC from any other region, then definitely the regional ceremony will be held and awards will be dispatched to their RDs for the ceremony in their respective region. So this is the change in the award ceremony. The next one is integration of AI for the exams preparation. This is the facilitation that we have that we are going to make available for the students of SSC and HSSC as well as for the teachers. कैसे करेंगे ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे. And the last one is a project that we are going to implement this year, inshallah, that is the external marking of the papers, and that will be in line with the FBIC instructions, that is AI-based marking. So we are having few meetings with the federal board. The project is in line or in the process of completion. As soon as the whole process will be compiled, then definitely as a pilot project, few regions will appear for the external marking, that is AI-based marking, in this particular year. So iski details we once finalized with the federal board, we are going to share with you. Next one. This is the basic assessment framework, which will comprise of assessment, result analysis, and complete record of the performance improvement of the student, the feedback which will be given and shared with the teachers and the students. Next, please. Yes, this is the first page of the policy senior school portion, the content page. From the content page, you can very easily find out all the details, all the procedures, and the policy matters related to senior school. Whether it is for SSC or HSSC, we have tried our level best to include each and every aspect with reference to the federal board and with reference to the APSACS internal procedures to add whatever is necessary to be known. However, if you find or if you think like that any aspect or any component is missing, you can always write to us or you can always ask us, and we can give the further details, share the further details with you. Next one. This is the general framework which will be followed in the coming session. There will be two types of assessments, informal assessments and the formal assessments. Informal assessments will not be uploaded on AIS. It will be the class test or any other revision test or the end of unit or the topic test and the PETs, right? And the formal assessments will be, the marks will be uploaded on the AIS and it will be comprised of continuous assessment like class assessments and test series after the first time examination before the pre-board exams, and then other type of formal assessments are the summative or the formal assessments, formative assessments, which are the centralized term examinations, first time at the pre-board, and FAs in board examinations.
The details regarding the component, structure, how to conduct it, how to hold it, how to draft a question, each and everything is present in the policy. So I hope you must have gone through it. There is no particular very prominent change in the policy procedure with reference to the class assessment, except for one thing. Next page पे जाइएगा. Except for one thing, इससे भी next पे जाइएगा जरा please. यहाँ पर in which there is a slight change in the marks, especially for the core subjects, that is English, Urdu, mathematics. उनके marks हम लोगों ने with the feedback received from the region that we solicited from the region during the month of November, in the first week of December. We have revised these marks. We have added 5 marks to the English, Urdu and mathematics assessment so that it gets aligned with the federal board instructions as well. So ये आप लोगों की feedback पर ही हम लोगों ने इसको increase किया. Moreover, एक question जो हमें during evaluation या sometimes through RDs हमें receive होता है, that is, इस frequency में we have mentioned 2 assessments, 2 class assessments for SSC and HSSC, whereas in class 9, 3 assessments take place. Yes, very correct. 3 assessments take place for the class 9 because there are more teaching time available for class 9 as compared to class 10th and HSSC classes. So यहाँ पर early start की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने generic आपको दिया है with respect to 2 assessments. Class 9 के लिए you will always go with the 3 assessments. ठीक है, तो यहाँ हमने 3 अलग से mention नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तीसरी assessment नहीं होगी या वो include नहीं होगी. It is formally a part of class 9 assessments और इसके marks भी carry forward होते हैं into the first term examination. So यहाँ पर ये मैं आपको clarity कर दूँ, हमें 1-2 दफा इस तरह के questions आए हैं कि क्यों यहाँ पर 3 नहीं होता या 9th में क्या 3 assessments नहीं होंगी. तो इसको आपने यहाँ पर अपने ज़हन में क्लियर कर दो. प्रीवियस की बैक पे जाइएगा. हाँ जी, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक जस्ट अ स्केड्यूल टू शो द स्केड्यूल हाउ यू मेक अ स्केड्यूल फॉर द क्लास असेसमेंट टेस्ट एंड जो भी डेट शीट आप बनाएंगे. But please keep in mind that for SSC and HSC students, please make a schedule of 1 test, 1 subject per day. If needed, you can take 2 tests on Monday only because after weekend the students can come with a good preparation. But during the regular days or during the other weekdays, there will be 1 test in a day. And use 0 periods only. And you have to obviously make the 0 periods other than the regular timetable. And use those 0 periods, regular timetables को अपनी या regular periods को उनको use नहीं करना. This is just a format. आप उसको आप अपने हिसाब से अपने accordingly इसको change करें. जिस तरह से भी आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, इट्स जस्ट अ सैंपल. और क्योंकि ये 0 पीरियड में हो रही है और अक्रॉस द सेशन एक ही टाइम के ऊपर हो रही है, सो ओनली 1 असेसमेंट विल बी डेवलप्ड. हम हर सेक्शन के लिए डिफरेंट असेसमेंट तब रेकमेंड करते हैं व्हेनेवर इट इज टेकन ड्यूरिंग अ रेगुलर टीचिंग पीरियड और व्हेनेवर इट इज एम्बेडेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो यहाँ पर क्योंकि 0 पीरियड यूटिलाइज हो रहा है, सो 1 असेसमेंट विल बी इनफ और एडिक्वेट फॉर द होल जो आपकी क्लास है. क्लास 9 के तमाम सेक्शंस के लिए यू कैन हैव 1 असेसमेंट ऑफ इंग्लिश. Or if you want, अगर आपको लगता है appropriate, you can have 2 assessments as well. हमें इसमें problem नहीं है, लेकिन it should be then of the same benchmarks, same SLOs, same difficulty level. फिर ये चीजें आपको as an subject coordinator and as a section head आपको ये ensure करानी पड़ेगी कि उनका difficulty level एक दूसरे से फिर different ना हो. एक ही level के ऊपर आकर आप अगर multiple test बना रहे हैं तो आप को assess करें. Next, इसमें एक और बहुत important बात, that is the PBA. PBA के लिए centralized practical based assessment हम आपको provide करेंगे at the end of first term and during the pre-boards. However, during teaching learning जहाँ पर आपके practical के periods आएंगे, double period आएंगे, try to abreast the students with the latest paper pattern, that is the PBA pattern. आप छोटी-छोटी worksheets develop करके उनको हर practical से related questions को attempt करने का तरीका, उनकी थोड़ी सी marking करके उनको feedback जरूर दें ताकि जब first time वो term 1 में pair हो तो उनके लिए ये कोई नई चीज ना हो. That is why हम लोगों ने जब अपना मार्क्स रिकॉर्डिंग शीट का फॉर्मेट भी बनाया तो वहां पे भी हम लोगों ने कि इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग का पार्ट रखा है. ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल, नॉट मैंडेटरी, लेकिन रिकमेंडेड जरूर है. आप इसको करेंगे तो आप ही के बच्चों का फायदा होगा, स्पेशली दोज हु आर कमिंग टू क्लास 9 एंड इन क्लास फर्स्ट ईयर, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज होती है वहाँ. जी, तर्जुमातुल कुरान एंड इस्लामियात असेसमेंट फ्रेमवर्क वही 9th वाला जो लास्ट ईयर था, विदाउट एनी चेंज इट विल बी फॉलो फॉर क्लास 10th नाउ. फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ईयर सॉरी, एंड बट एक्सपेक्टेडली यही फॉर्मेट उनका भी फॉलो होगा.
वही सेम 18 सूरास, जिसमें से 6 समेटिव सूरास होंगे which will be selected, which have been selected by FPIAC. But you have to teach the students rest of the 12 surahs in the class, and you have to take the informal assessments of those surahs also. जो डिटेल सारी जिसके जो भी फ्रीक्वेंसी है कि टोटल आपने 10 जो टेस्ट लेने हैं इनफॉर्मल असेसमेंट्स, और 7 जो है वो आप लेंगे फर्स्ट टर्म में और 3 आप लेंगे सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो वो डिटेल सारी आपकी पॉलिसी में मौजूद है, प्लीज उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर भी अभी तक ये डाउट है कि किस तरीके से टेस्ट इनफॉर्मल कैसे तर्जुमातुल कुरान के लेने हैं। Those informal assessments will not be the part of the class assessments of Islamiyat. Islamiyat compulsory class assessment का वो पार्ट नहीं होगा, वो पार्ट होंगे इस्लामियात कंपल्सरी का पेपर में, और वो भी उसका सिर्फ 5 मार्क्स का पोर्शन है सेक्शन बी में, व्हिच इज रिलेटेड टू तर्जुमातुल कुरान, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगी उसमें। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपीयर हो चुके हैं, अब आपके पास सैंपल पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है, आप अपने बच्चों को इजीली गाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले इस चीज को देखिएगा कि इनफॉर्मल असेसमेंट्स आपने बाकियों के लेने हैं, उसमें आप जरूरी नहीं कि सारी सूरास जो है 12 होते हैं वो डिटेल में आप उनको पढ़ाएं, आप सिलेक्टेड आयात भी ले सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस बच्चों को पढ़ानी आपने सारी हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्कीम ऑफ वर्क। However, जहाँ पर असेसमेंट का पार्ट आएगा, you can always facilitate your teachers. मैं सेक्शन हेड से इस वक्त बात कर रही हूँ। You can facilitate your teachers in terms of selection of selected IR and your students as well. उनको भी आप वहाँ पर कर सकते हैं ताकि उनको पेपर पैटर्न पता लग जाए और उनको ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से एक आयत उसका तर्जुमा दिया हुआ होगा और उसकी बेस पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आज हमारी फेडरल बोर्ड में मीटिंग हुई है, आई वाज देयर, और उस मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ है फर्स्ट ईयर का इस्लामियात का पेपर पैटर्न। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में भी इसको कर देंगे। सो फार अभी तक जो चीजें डिसाइड है वो यही है कि 9th और 10th के पैटर्न पर ही फर्स्ट ईयर में भी इस्लामियात का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, तर्जुमातुल कुरान उसका कॉम्पोनेंट होगा। लेकिन ये चीजें अभी आप इनफॉर्मल समझे इसलिए क्योंकि रिटर्न में हमारे पास अभी कोई चीज नहीं आएगी। वैसे भी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होने में भी वी हैव गॉट एम्पल टाइम पीरियड विद अस। ये आपके पास जून एंड से या जुलाई के फर्स्ट वीक से वॉर्म रीजन में स्टार्ट होंगी। सो तब तक इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड का और नेशनल करिकुलम काउंसिल का कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आ गया होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी आपके पास स्कीम ऑफ वर्क में भी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। सो फॉर फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। सेम इन द केस फॉर द सेकंड ईयर पार्ट स्टडीज, सेकंड ईयर पार्ट स्टडीज में भी यही है। वी हैव गॉट द टाइम पीरियड, वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजंस फ्रॉम फेडरल बोर्ड एंड, लेकिन टिल टू डेट अभी तक जो डिसीजंस हैं वो यही कि फर्स्ट ईयर में पाक इस्लामियात और सेकंड ईयर में पाक स्टडीज पढ़ाई जाएगी। मार्क्स विल रिमेन द सेम पेपर पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर पाक स्टडीज एज प्रीवियसली एंड 9th 10th पेपर पैटर्न फॉर इस्लामियात विल बी फॉलोड इन फर्स्ट ईयर। ये अभी तक के डिसीजंस इनफॉर्मल डिसीजंस हैं। Formally, we'll follow whatever federal board will communicate through an official notification, and for that you have to wait till June. पूरे जून के मंथ के अंदर they are working on it. आज भी वहाँ पर उन्होंने different लोगों को बुलाया हुआ था, मीटिंग हो रही थी। So इंशाल्लाह very soon इसकी डिटेल्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जी, ये रिकॉर्ड शीट है which will be incorporated in the lesson planners also. अच्छा, अब इसमें आसानी क्या है इस्लामियात के टीचर्स के लिए? आसानी ये है कि लास्ट ईयर जितना भी इनफॉर्मल असेसमेंट्स थे तर्जुमातुल कुरान के लिए, उसके लिए एक अलग रिकॉर्ड शीट जिसको मेंटेन करना जरा प्रॉब्लम थी। अब हमने इकट्ठा ही उसको इम्बेड कर दिया है। एक साइड पे क्लास असेसमेंट्स इस्लामियात कंपल्सरी है और दूसरी साइड पे इनफॉर्मल असेसमेंट्स और तर्जुमातुल कुरान से रिलेटेड। इनफॉर्मल है इसलिए ये अपलोड नहीं होंगे AIS पे, बट इसको मेंटेन करना, इसका रिकॉर्ड। और आप देखिएगा 10 आपने तर्जुमातुल कुरान की टेस्ट है तो 10 यहाँ पर आपको मार्क होने हैं इनफॉर्मल असेसमेंट के। वंस कोई भी एवेल्यूएटर अगर आपसे डिमांड करता है तो आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। और जो यहाँ पे दूसरी साइड पे जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड एरिया है ये फॉर्मल असेसमेंट्स का, यानी क्लास असेसमेंट्स हैं, फर्स्ट टर्म है, टेस्ट सीरीज है, जिनके मार्क्स अपलोड होंगे AIS और ये आपके लेसन प्लानर्स में मौजूद है। एक क्वेश्चन हमें ये भी बहुत आता है कि अगर कुछ सूराज ने बोर्ड ने कुछ सूराज को असेस करना ही नहीं है तो फिर उनको हम पढ़ा क्यों रहे हैं और उनके इनफॉर्मल असेसमेंट का रिकॉर्ड क्यों रख रहे हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये लॉ है, आपने इन सूराज को पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये सूराज इस लेवल पर बच्चों को पढ़ाना मैंडेटरी है।
और कैसे पता लगेगा कि आपने पढ़ाया है या आपने नहीं पढ़ाया, ये क्लास में ये बच्चों ने की है या नहीं की। उस केस में एनसीसी की इंस्ट्रक्शन ये है दैट 40% वेटेज टू बी गिवन, 40% वेटेज इन असेसमेंट टू बी गिवन टू तर्जुमातुल कुरान। सो उसी वेटेज को सामने रखते हुए और बोर्ड की तरफ से भी ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन 6 को फेडरल बोर्ड असेस करेगा अपने समेटिव एग्जामिनेशन में, वो तो चले सामने आ जाएंगी। उसके अलावा की बाकी तमाम स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करके अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करे। Whenever NCC will require, ये रिकॉर्ड उनको पेश किया जा सकता है, उनके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है in order to ensure कि स्कूल लेवल पर लॉ के अकॉर्डिंगली ये तमाम सूराज कवर कराई गई। सो दैट इज वाई आपको कहा जाता है कि इसका इनफॉर्मल रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना। ठीक है, सो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम इनसे वायलेट नहीं कर सकते। क्योंकि एसओडब्ल्यू में भी ये सारी सूराज मौजूद हैं। अगर आप एसओडब्ल्यू को भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जिस तरह से जो जो सूराज एसओडब्ल्यू में आपकी आ रही है, आप उसी तरह से उनको पढ़ाएंगे और उनका मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड इनफॉर्मली, जिस तरीके से उसमें मेंशन जो जिन जिन सूराज का। नेक्स्ट वीडियो जी, these are the facilitations which have been given by the APSACS Secretariat first time examinations. Pre-board examinations, rubric-based answer keys are given to you. PBAs and entry test preparation practices या online कर MCQs. ये already practice में है। आप हमारे मतलब हम लोग already ये first time examination की board rubric-based answer की PBA last time भी आपको भेजे थे, PETs के और online सारा ये already आपको facilitations मिल रही हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सेंडर्स जो है हमारे एपसेक्स में ये टर्म मौजूद नहीं है। सेंडर्स प्लीज कॉल इट फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म आप अपना एडमिशन बच्चों का जरूर भेजते हैं, बट हम किसी को डिटेन नहीं कर रहे, हम किसी का रोक नहीं रहे, तो इसको सेंड अप नहीं करेंगे आप। ठीक है, हम उसकी बेसिस पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और डबल पी, ट्रिपल पी के साथ भेज जरूर सकते हैं। वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आपके डिसीजंस पे है, बच्चों के रिजल्ट पे बेसिस पे, लेकिन डिटेंशन नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टर्म्स सेंडअप्स यूज होती है, बच्चे भी सेंडअप्स इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और एक फोबिया होता है इसका कि सेंडअप है हमारा एडमिशन नहीं जाएगा। तो प्लीज कीप इन माइंड डिटेंशन इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो उसको आप देखिए, जब भी बच्चा अगर 40% ओवरऑल is unable to pass the exams overall। ओवरऑल का मतलब अभी आप नेक्स्ट शीट्स में देखिएगा, जो रिकॉर्ड शीट्स होंगी उसमें फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस, वहां तक कंप्लीट एक एग्रीगेट होगा और वो 40% आप उसको एज अ क्राइटेरिया देंगे, उसको उसका 40% आप क्राइटेरिया लेंगे फॉर एडमिशंस। अगर कोई बच्चा फर्स्ट असेसमेंट में अपीयर नहीं होता किसी जेन्युइन रीजन से, तो ऑब्वियसली उसका एवरेज होगा, जिस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे मार्क्स को। अदरवाइज अगर कोई हैबिचुअल बच्चा है, जिस तरह पहले बहुत सारे स्कूल्स में ये इशू है कि बच्चे असेसमेंट्स को इतना सीरियस नहीं लेते, सिर्फ फर्स्ट टर्म क्योंकि उसके बेसिस पर रिजल्ट जाता है, तो फर्स्ट टर्म में बच्चे तैयारी कर लेते हैं, फर्स्ट असेसमेंट एंड सेकंड असेसमेंट को बहुत इजी ले रहे थे। तो आप प्लीज उनको बिल्कुल स्टार्ट द सेशन उनको बता दीजिए कि दिस इज वेरी mandatory to attend and to pass the first assessment and second assessment, because एग्रीगेट बनेगा और 40% उसी 40% की बेसिस पर उनका एडमिशन जाएगा। और ये लास्ट ईयर भी किया है, ये पूरा सेशन जो आपका लास्ट चला है 23-24, उसमें हमने इनके कॉम्युलेटेड मार्क्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करवाए थे इन देयर टर्म एग्जामिनेशन, और उसी में हमने 40% की बेसिस के ऊपर इनको मतलब सब्जेक्ट क्लियर्ड और सब्जेक्ट नॉट क्लियर्ड या फेल जो है हमने रिफ्लेक्ट करवाया। तो इट इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, और आपने अब फर्दर भी बच्चों को अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आएगी, अभी नहीं आई है, लेकिन जो बच्चे भी आपके पास आते जाएंगे उन्हें बता दें कि इन क्लास असेसमेंट्स की अपनी वेटेज है, वैल्यू है, यू कैन नॉट स्किप दीस असेसमेंट्स। जी नेक्स्ट कीजिएगा। जी, पीबीएस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नेक्स्ट करें प्लीज। इसमें अभी आपके पास 9th के हो गए हैं पीबीएस, आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी किस किस्म की असेसमेंट आ रही है। सो मेक योर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्लियर अबाउट इट। अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है या कोई चीज नहीं क्लियर, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। बोर्ड के लेवल पर अगर कोई चीज आपको नहीं क्लियर हो रही तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज 9th की पीबीएस सामने आने के बाद काफी हद तक क्लैरिटी आ गई है कि व्हाट विल बी देयर क्राइटेरिया in terms of asking the questions or taking the जो भी उनके MCQs हैं या drafting of the questions, वो हमें clarity काफी हद तक उससे हो गई है। पर कुछ SOPs
जो which are related to practical based assessment which are given in the assessment policy booklet will be shared with you. Please next video. Despite the fact that these practical based assessments are just the written evaluations of the experimental scales and all the things, but their performance is mandatory in the labs. वहाँ बिजनेस में कुछ खिला दूं बच्चों को प्रैक्टिकल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं क्लास ऑब्वियसली टाइम टेबल जिस तरह से बना हुआ है डबल पीरियड जिस तरह ऑलरेडी प्रैक्टिस में बच्चे प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं डबल पीरियड में बिल्कुल वैसे ही बच्चे डबल पीरियड को अवेयर करेंगे फॉर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस एंड the section heads will please you will ensure that all the practicals have been performed diligently in the labs और उनका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन है रिकॉर्ड किस फॉर्म में मेंटेन होगा अभी हम लेटेस्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे भी the records will be maintained by the lab attendants जो है नेक्स्ट कीजिएगा जरा नेक्स्ट जी ये जो ऊपर वाला आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा बाय द लैब अटेंडेंट्स इन द लैब आप इसको देखिए इसमें डेट है प्रैक्टिकल जो टाइटल है वो है ठीक है इसके सारी डिटेल्स गिवन है और फिर अटेंडेंस शीट है जिससे आपको क्लियर होगा कि बच्चा जिस मतलब हर बच्चे के मैंडेटरी है कि उसने हर प्रैक्टिकल में अटेंडेंस अपनी देनी है अटेंड करेगा एंड ही विल परफॉर्म द अटेंड एंड सेक्शन हेड टीचर विल साइन दिस पेज और द फॉर्मेट एंड सेक्शन हेड हैज टू काउंटर चेक इट प्लीज थोड़ा कुछ अरसे के बाद इसको देखिए कि प्रॉपरली और रिलीजियसली ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हो रहे हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं सेकेंडली ये जो फॉर्मेट आपको गिवन है जो भी आपको शो हो रहा है इफ यू आर फिजिबल आपके एडमिनिस्ट्रेशन इस मतलब आपको अलाउ करती है इट्स इजी टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ दीस फॉर्मेट्स आप प्रिंट आउट्स भी यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए अदरवाइज आप रजिस्टर्स के अंदर किसी फॉर्मेट से मैनुअली भी चीजें कर सकते हैं हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई ये पाबंदी नहीं है कि आपने प्रिंट आउट लेकर ही लगाने हैं सिर्फ फॉर्मेट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बिकॉज ड्यूरिंग इवैल्यूएशंस व्हेनेवर वी गो टू द स्कूल्स और कॉलेजेस वी ऑलवेज फाइंड आउट हर एक ने अपने तरीके से इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है सो दिस वन इज वेरी बेसिक वन सिंपल वन लेकिन इट इंश्योर्स कि जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ हुआ जो आपकी मैंडेटरी है स्कीम ऑफ वर्क में दैट इज व्हाई ऊपर हमने प्रैक्टिकल का टाइटल दिया हुआ है सो द टीचर द सब्जेक्ट टीचर विल एंटर द प्रैक्टिकल टाइटल and accordingly student attendance will be ensured जी then notebook usage as you know that the practical notebooks are discontinued now practical notebooks की ना अब marks है और ना उनकी weightage तो प्लीज बच्चों को सजेस्ट ना करें कि वो प्रैक्टिकल नोटबुक्स लें प्रैक्टिकल नोटबुक्स बिल्कुल भी उनके पास नहीं होनी चाहिए इफ यू हैव ऑलरेडी सम प्रीवियस प्रैक्टिकल नोटबुक्स विद इन यू तो उनको लाइब्रेरी में रख दें ताकि बच्चे भी अगर चाहें तो उससे रेफरेंस ले सकते हैं या टीचर्स अगर रेफरेंस के लिए ले सकते हैं बट डोंट कंपेल और फोर्स द स्टूडेंट्स टू बाय एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग गाइड book or the practical notebooks or the PBA books which are available in different forms in the market now. तो उसको आपने बिल्कुल भी बच्चों को अलाउ नहीं करना. Students can use their notebooks, the class notebook, the subject notebooks, and they can use 1/4 or 1/3 of that notebook depending on the number of the practicals. वो वहीं पे maintain करेंगे और टीचर्स वहीं पे उनको चेक करेंगे और फीडबैक देंगे. किस फॉर्म में आप मेंटेन करेंगे स्टूडेंट्स वो भी फॉर्मेट शेयर करके दोबारा मैं अभी उसी स्लाइड पे लेके जाती हूँ. नेक्स्ट जी ये यहाँ पर देखें एक तो लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्मेट है. दूसरा जो फॉर्मेट आपसे शेयर किया गया सेक्शन पॉलिसी पे दिस विल बी विद द स्टूडेंट्स. ठीक है ये स्टूडेंट्स के पास होगा. अब स्टूडेंट्स के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप उनको प्रिंट आउट दें. अगर आपके लिए इजी है कि आप उनको प्रिंट आउट दे सकते हैं तो गुड. अदरवाइज बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं कि दिस इज द लेआउट, दीस आर द इंडिकेटर्स जिस फॉर्म में बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल्स after performance they have to record the procedures and the calculations, observations, diagrams or whatever related to the experiment. He or she will record that all the process here in this format, right? Last पे अगर आप देखें तो practical based questions. ये practical based question these will be given by the teachers. ठीक है कोई conceptual question, critical thinking से related question जो भी उसी LO से related हैं जो आपके ख्याल में एक्सपेक्टेडली हो सकते हैं जो भी पॉसिबल जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं आप बच्चों को उसी वक्त वो बताएं और बच्चों को एक टास्क दें कि वो नेक्स्ट
टाइम जब डबल पीरियड में उनकी क्लास होगी तो वो उसमें उनका आंसर प्रॉपरली लिख के आए। अब आप उसको मार्क करेंगे, सॉरी आप चेक करेंगे, आप उसे फीडबैक देंगे, ठीक है। दिस फीडबैक ऑब्वियसली विल हेल्प द स्टूडेंट्स। और दूसरा, आप अगर चाहें तो इसको आप मार्क भी कर सकते हैं, मतलब अगर वर्कशीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एलओ या ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी चीज को आप एज अ वर्कशीट भी यूज कर सकते हैं और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे वो भी प्रीवियस स्लाइड में दोबारा आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल, अच्छा आप बच्चों ने इसी फॉर्मेट में इसी इंडिकेटर्स को यूज करके अपनी नोटबुक में इसको मेंटेन करना है। For HSSC, obviously they are not using, most of the students they are not using the proper APSACS titled notebooks or the registers. तो आप उनको compel नहीं करेंगे उनको special notebooks ही खरीदें। Whatever type of registers or the notebooks they are using to note down their lectures or making the notes, उन्हीं का एक पार्ट को बना ले पीडीएफ के लिए और वहां पे अपना ये मेंटेन कर ले रिकॉर्ड। ऑब्वियसली जो भी मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड आप उन्हें चेक करेंगे प्रॉपर ताकि कोई मिस ना हो सके बच्चे, क्योंकि यही चीज उनको हेल्प आउट करेगी उनकी प्रिपरेशन में, यही रिकॉर्ड उनको हेल्प आउट करेगी। उनके पास प्रैक्टिकल नोटबुक्स तो नहीं। पीछे कीजिएगा एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक प्रोसीजर, सो प्लीज इसको मेक श्योर कीजिएगा। डिटेल्ड प्रोसीजर लिखने की कतई जरूरत नहीं है। बच्चों से कहीं पर भी पीबीए में प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा। बेसिक प्रोसीजर से मुराद कि आपको ये पता होना चाहिए स्टेप कौन सा इन्वॉल्व था, प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व था। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की एग्जाम्पल देती हूँ, वाज इट डिस्टिलेशन, वाज इट इवेपोरेशन, वाज इट फ्रैक्शनल डिस्टिल, अगर डिस्टिलेशन है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या सिंपल डिस्टिलेशन है, मतलब आप क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसीजर इसमें हुआ है, कोई लॉ, कोई प्रिंसिपल, एनीथिंग सिग्निफिकेंट दैट मे बिकम अ पार्ट ऑफ पीबीए, वो आप यहाँ बेसिक प्रोसीजर में ऐड कराएंगे। इसी तरह एलओ बच्चे को जरूर पता होना चाहिए कि आखिर जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो किस एलओ की बुनियाद पे, वो आपने बच्चे को जरूर मेंशन कराना है। बेसिक फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन अगर कोई इन्वॉल्व है वो लिखवानी है। ऑब्जर्वेशन में भी इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन दैट इज इन्वॉल्व, वो आप उसको करना सिखाएंगे। जो फॉर्मूला इन्वॉल्व हो रहा है वो आप उसको बताएंगे, उसको हैंडल करना, डाटा को हैंडल करना बताएंगे। और इसकी बेस पे जब आप अपनी असेसमेंट पॉलिसी में देखेंगे तो लास्ट में एक और इसमें कॉलम बना हुआ है जिसमें दिया हुआ है फाइनल ऑब्जर्वेशंस। वो फाइनल ऑब्जर्वेशंस बच्चा खुद लिखेगा। लेट हिम और हर राइट द फाइनल ऑब्जर्वेशंस, let him analyze whatever has been done during the whole experiment and to what conclusion he or she has come to. So let him or her write that part and you will be checking that part. और फिर इस पे आप फीडबैक देंगे। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, इनको इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स को बनाने का सिर्फ एक ये मकसद नहीं है कि हमने आके रिकॉर्ड चेक करना है या कोई और रिकॉर्ड चेक करेगा। इसका मकसद दो मकसद है इसके। नंबर वन, it is the facilitation for a student because he or she will not have to buy any notebook at the end of the academic session. And number two, while doing or while planning the next experiment, you will have a very clear idea कि बच्चों को चीजें रिकॉर्ड करते हुए और उनके आंसर्स को रिप्रोड्यूस करते हुए कहाँ प्रॉब्लम हुई है। So you will design your next experimental lecture or you will plan your next double period accordingly. So ये आपका और बच्चों का टूल होगा। इसको ऐसे टूल आप अप्लाई करेंगे, इसका और कोई मकसद नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी ने चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मेंटेन करेंगे। इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ और फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जी बैक अच्छा जी, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट सेकेंडली जो भी पीबीएस चलें ओके राइट, द रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स जो भी डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स ने, कैसे रिकॉर्ड करने हैं अपने प्रोसीजर, कैसे मेंटेन करनी है अपने नोटबुक्स, राइट। टीचर्स ने कैसे फीडबैक देना है, एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि पीबीएस जो है वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम बच्चा अपीयर हो रहा है, उसको इसका पता नहीं है कि पीबीएस कैसे होंगे, तो उसको कॉन्टिन्यूस एक फीडबैक मिलनी चाहिए। एंड द इंस्ट्रक्शंस, डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर सेक्शन हेड्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स they are given in the policy handbook piece, उसको जरा डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि सेक्शन हेड की भी अपनी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो उन्होंने लास्ट में अकम्प्लिश करनी है। And as this assessment policy is not available to the student, so जो instructions हमने students के लिए यहाँ पर आपके लिए लिखी है, kindly वो आपने students से share भी करनी है, either in the form of WhatsApp group, आप उसका एक image लें या उसको drop करके आप उनके WhatsApp group में डाल दें, or you can always share all these instructions in the form of notification या circular जिस तरह आप उनकी diaries में paste करवाते हैं। But all these things should be very clearly communicated to the students because their marking,
their working, their recording will be dependent upon all these instructions. नेक्स्ट जी जी, ये रिकॉर्ड शीट है फॉर साइंस टीचर्स, जो कि साइंस टीचर्स के लेसन प्लानर में इंकॉर्पोरेट होगा, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर टीचर्स, जिनमें अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो ग्रीन में पोर्शन है इट विल बी अपलोडेड ऑन AIS, फॉर्मल असेसमेंट्स हैं और इनफॉर्मल असेसमेंट्स PBS हैं। अब यहाँ पर हमने नंबर गिवन है 4 PBS, एटलीस्ट 4 PBS। अच्छा, ये PBS जो है फर्स्ट टर्म में जो शो किए हुए, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वर्कशीट, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ असेसमेंट, कोई भी आप मॉडल पेपर, पुराना पेपर, सैंपल पेपर आप दे सकते हैं, किसी ऑनलाइन कहीं से भी वेबसाइट से आप कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ भी दे सकते हैं, उसको मार्क करें। ये मार्किंग आपके लिए है और बच्चे की गाइडलाइन के लिए है, ये AIS पे अपलोड नहीं होगी, ठीक है। और जो सेंट्रलाइज्ड PBS है वो यहाँ से एप्सा सेक्रेटेरिएट से हम आपको भेजेंगे, उनको चेक करना है और चेक करने के बाद इसकी काउंटर चेकिंग यानी रीचेकिंग सेक्शन हेड भी करेंगी। 25% जो पेपर्स हैं वो आफ्टर चेकिंग, टीचर्स की चेकिंग के बाद वो सेक्शन हेड उनको रीचेक जरूर करेंगे, ताकि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक अच्छा चेकिंग सिस्टम होना चाहिए और उस चीज को चेक करने के लिए सेक्शन हेड उसको रीचेक जरूर करेंगे। इनफॉर्मल एम्बेडेड असेसमेंट जो आपकी PBA की फॉर्म है, इसके लिए हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक वेबसाइट है दैट इज olabs.com। अगर आप रिटर्न में असेसमेंट नहीं भी लेते या PBA को नहीं भी आप वर्कशीट डेवलप करके देते, तो एटलीस्ट ये चीज मेक श्योर कर लें कि आपका बच्चा आपकी सुपरविजन में olabs की वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में सिमुलेशंस को अटेम्प्ट कर रहा है। सो वो डेट भी जहां पर आपने बच्चे को olabs या उससे मिलती जुलती किसी और वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने सिमुलेशंस के जरिए बच्चे को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कराई है, दैट यू कैन ऑलवेज रिकॉर्ड दैट, ठीक है। सो वो भी आपकी PBA का हिस्सा बन सकता है। सो इट इज एट द टीचर एंड एट द सेक्शन हेड एंड कि आप इसको किस तरीके से स्मार्टली हैंडल करते हैं। अगेन इन रिकॉर्ड शीट्स में इनफॉर्मल असेसमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमने आके चेक करनी है फिर इसलिए आप इसको फिल करेंगे। दिस इज फॉर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिस फॉर द फॉर्मल एग्जामिनेशन, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन। सो जितना रिगरसली और रियलिस्टिकली आप इन PBS को डेवलप करके बच्चे की प्रैक्टिस कराएंगे, उतना ही आसान आपके बच्चे के लिए यहाँ की APSACS सेंट्रलाइज्ड PBS को करना और एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड के जो PBS होंगे उनको अटेम्प्ट करना उसके लिए आसान हो। और ये जरूरी नहीं कि 4 यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट टर्म में 4, सेकंड टर्म में तक से ज्यादा भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई PBS असेसमेंट्स और जो भी वर्कशीट्स और आप देते हो तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बस मिनिमम 4 आप जी। नेक्स्ट टीचर, centralized PBS will be given by us. Go to Simon. जी, now the next part that is instruction related to revisions, test series, result analysis, PTM, that will be handled by Simon. Then we have instructions related to the revision plan. Okay. Section heads are to ensure the comprehensive revision plan. By drafting any revision plan, these indicators must be kept in mind. First of all, these are basically identify the syllabus, review the entire syllabus, make a list of all topics on the what you can say weightage wise or priority wise, ठीक है, जो आपकी requirement है. Break it down into manageable sections के जो doable mode में हो. Secondly, thirdly जो है वो while creating any study schedule, be mindful of the weakest link, the one who have what you can say conceptual clarity का काम है बच्चों की, उनकी वेट को देखकर जो है वो अपना जो स्टडी स्केड्यूल है उसको जो है वो डेवलप करें। फिर आपके पास जो है वो प्रायोरिटाइज करें वीक एरिया को, दैट बेसिकली अकाउंट फॉर आपने ईच एंड एवरी सेक्शन में देखने कि बच्चों को कहाँ जो है वो जहाँ आपको और बच्चों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग का इशू आ रहा है मैक्सिमम उसमें उनको प्रायोरिटाइज कर दें, ठीक है। शेयर द रिवीजन प्लान विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स Valentine अब ये revision plan that need to be pasted on the chalkboard as well, ठीक है। इसमें जो है वो जो previous year जो papers हैं और जो model papers हैं that has been shared on the FTI website, वो भी जो है वो आप बच्चों को solve करवाएं। फिर उसके बाद जो है वो study material जो है वो बाकी जो reference books हैं उनको भी consult करें। क्लास नोट जो है वो और डिफिकल्टी लेवल वाइज जो है साइंटिफिक रीजनिंग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अदर बुक से भी जो है वो कंसल्ट करें।
समराइज करें, माइंड मैप्स बनाएं, सेंस डायग्राम जो दैट वी विल दिस इंडिकेटर स्पेशली फॉर द व्हाट यू कैन से की पॉइंट्स को रिमेंबर करने की यूटिलाइज हो सकता है और ये बच्चों के लिए जो क्वाइट हेल्पफुल है. These mind maps are already given your notebook as well, or try to provide individualized score or keep time management in mind, because whatever you are drafting, आपने एक टाइम फ्रेम में उसको जो है पर्पस आपका ये नहीं होता कि मैंने सारा सिलेबस कवर करना है. पर्पस इज टू एंश्योर कि आप जितना भी कवर कर रहे हैं वो बच्चों को जो है अब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट कि ये रिवीजन प्लान सिर्फ आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन दैट इज प्री बोर्ड से पहले ही खाली इंश्योर नहीं कराना. आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम से पहले भी आपके पास रिवीजन का एक छोटा सा स्लॉट आता है. सो द सेम प्रोसीजर इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग दैट रिवीजन स्लॉट. उसमें भी आप इसी तरीके से आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कि आपके कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि वीक जा रहे हैं, जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं. और ये पॉइंट आप कहाँ से उठाएंगी? फ्रॉम योर क्लास असेसमेंट रिजल्ट्स. तो आपकी क्लास असेसमेंट का रिजल्ट वहां पे बच्चों के स्पेसिफिक एरिया में उनके रिस्पॉन्सेज आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एरिया है जिसको दोबारा से रीकैप करने की जरूरत है बिफोर दे अपेयर फॉर द फॉर्मल फर्स्ट टर्म एग्जाम. सो उनको आप प्रायोरिटाइज कर उनके मुताबिक अपना 1 वीक का, 5 दिन का, 4 दिन का स्केड्यूल बनाएंगे और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना पूरा रिवीजन 4-5 दिन में लेकर चलेंगे. जहां तक पॉइंट आ जाता है गैदर स्टडी मटेरियल, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर. ये जो हम कभी हम इवैल्यूएशन पे जाते हैं, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन हमें ये देखना पड़ता है, ये हम देखते हैं और आइडेंटिफाई भी किया हमने कई जगहों पर कि बच्चे को कहा जाता है कि 3 किताबें खरीद के रखें. It is not the responsibility of a child to go through 3 or 4 or 5 books. It is actually the responsibility of a teacher कि वो एलओ को सामने रखते हुए, इन किताबों को सामने रखते हुए अपना लेक्चर इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप करे, प्लान करे उस टॉपिक को, बच्चे को फिर अलग से किसी और बुक से गो थ्रू ना करना पड़े. सो एज अ टीचर आप इन बुक्स को गो थ्रू करेंगे. दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन द AIS पोर्टल. आपके AIS पोर्टल पर अवेलेबल है. डाउनलोड योर रेलेवेंट बुकलेट्स विद यू. अपने लैपटॉप में आप उनको रखें, अपने डेस्कटॉप पे उनको रखें, USBs में रखें. And while preparing your lecture, always go through the rest of the materials, study materials from the other boards as well. So this is going to help you out. अब क्या होगा कि उनमें से कुछ चीजें आप बच्चों को बता सकेंगे, कुछ चीजें आप उनको वर्कशीट की फॉर्म में, असाइनमेंट की फॉर्म में या फिर वीकेंड्स के ऊपर उनको थोड़े से टास्क की फॉर्म में आप दे सकते हैं. सिमिलरली कुछ डायग्राम्स, कुछ फाइंड मैप्स या इस तरह की कुछ चीजें जो हैं वो आप क्लास में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. जो आपके नोटिस बोर्ड्स हैं वहां पर आप इनकी समरी डेवलप करके, माइंड मैप्स डेवलप करके ड्यूरिंग दैट लेक्चर इनेबल करवा दें, ताकि आपका बच्चा जब भी नोटिस बोर्ड्स की तरफ देखे एटलीस्ट वो मेन कॉन्सेप्ट्स, वो मेन बातें जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड उसके माइंड में होनी चाहिए वो वहां रिफ्लेक्ट हो जाए. इन समरीज और माइंड मैप्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट इट ऑल्सो should have the rubrics related to that particular topic as well. For example, अगर वो comprehension कर रहा है तो उसकी क्या rubrics हैं जो कि assessment में utilize होते हैं, student must know. अगर वो composition के topics कर रहा है, उसने letter लिखना है, उसने essay लिखना है, उसने story करनी है, उसने dialogues करने हैं, उसने तशरीह करनी है, कुछ भी अगर उसने करना है तो उससे related कौन से particular rubrics हैं जिनकी बेस पर उसकी marking होगी, that should be reflected on your notice board. सो ये तमाम चीजें आपके रिवीजन प्लान और आपकी रेगुलर टीचिंग का हिस्सा होनी चाहिए. यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इसलिए लिखा गया था कि आप फर्स्ट टाइम से पहले रिवीजन के अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे सारी चीजें और प्री बोर्ड से पहले जो आपके पास रिवीजन का स्लॉट आएगा उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें. जी नेक्स्ट. Then we have test series. Test series basically a 2 to 3 week plan, okay, or that need to be developed by the subject teachers in coordination with other teachers, okay, or this is what we have for today is basically यहाँ पे जो है आपके पास there is open choice for you कि इसमें जो है वो आपको देखा कि you are not bound कि once you are done with whole syllabus for each and every subject so you are going to start a test series, ठीक है, प्लान आप बनाएंगे. जब आपका सिलेबस फाइंड अप हो गया, लेट्स से अगर फिजिक्स स्टैंड अप हो गया है तो आप अपना प्लान जो है वो हमसे शेयर कर टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का शेयर कर सकते हैं. वही प्लान दैट नीड टू बी बेस्ड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एज वेल, ठीक है, विद इन द फॉर द मंथ, फॉर द होल मंथ, और स्टार्ट टेस्ट एज पर योर एंड योर व्हाट यू कैन से स्टूडेंट्स कन्वीनियंस, ठीक है, और दैट प्लान नीड टू बी डिस्कस्ड विद सेक्शन हेड एंड कीप योर आरडी इन लूप एज वेल, ठीक है. और ब्लॉक सिलेबस
बी और उसका जो इसमें जो आपके पास जो टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन content है और कंटेंट उसकी जो क्या कहते हैं जो डेट शीट है that will be discussed with students or that will be pasted on the softboard as well and be shared with parents as well. And this is the facilitation that we have introduced for this time. Previously हम आपको allocate करे थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते के नहीं में आप revision slot लें. उसमें ये feedback हमें बहुत सारी जगहों से receive हुआ जब हमने assessment plan से related feedback मांगी थी कि कुछ content ऐसे हैं, कुछ subject ऐसे हैं जिसमें जो course है वो जल्दी खत्म हो जाता है. So the teacher have to wait till the test series begin. So यहाँ पर इस time हम लोगों ने आपको clear discretion दी है that during the second term, once your content, your course completes, you can plan for the test series of your particular subject after the approval from your section head. ठीक है? Minimum two जो है test that will be planned for a specific subject, लेकिन ये maxima जो है वो two जो है that is mandatory और maxima जो है as per your needs 5 आपकी हो सकती है और जो इनकी आगे जो spreadsheet है वो हम डिस्कस करेंगे. Teachers should record these plans in their folders as well. Plus, teachers to maintain section had to maintain the follow-up these plans, okay? Or result analysis sheet that need to be uploaded on the AIS and regular teaching period must be utilized for what you can say is revision of the past papers, okay? और इसके अलावा मॉडल पेपर्स जो अभी करंटली आए हैं इस सेशन के पेपर जो है उसमें बाकी का टाइम स्पेंड करें और प्रेफरेबली जो 1.5 आवर जो है वो सुबह अर्ली जो है वो बिफोर ब्रेक टाइम पीरियड है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज कंडक्शन. जी नेक्स्ट कीजिएगा. जी. Then we have that's basically in tabular form that maximum time for the SSC and HSC test series pattern. For sciences we have 40 marks for computer science 30, for SSC and for HSC we have 50 marks. Then we have for Islamiyat, ethics and past studies 30 marks, for SSC and HSC 11 both. Okay, whatever plan you have shared with the student that need to be in the आपको जो एक framework दे दिया है इसके accordingly आप plan जो बनाएंगे, ठीक है. वो आपका revision plan भी हो सकता है, वो आपका discussion भी हो सकता है, assignment based भी हो सकता है और test भी हो सकती है, chapter wise भी और important topic wise भी. आप chapter को further भी जो है वो उनकी weight wise जो है वो distribute कर सकते हैं. अच्छा इसमें ये है कि ये जो रिजल्ट एनालिसिस की शीट्स हैं टेस्ट सीरीज की भी और प्लस इसके अलावा भी जो हम लोगों ने टीचर वाइज सेक्शन हेड वाइज सब्जेक्ट टीचर वाइज हम लोगों ने की हुई थी इंशाल्लाह दिस ईयर दे विल बी अवेलेबल ऑनलाइन. जिस तरह 4 to 8 का आपके पास पहले ग्रैंड शीट है ऑनलाइन एक्सेल की शीट आपके पास मौजूद है. सिमिलरली वी आर वर्किंग, हमारी टीम अभी इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट मंथ ऑल दीज शीट्स विल बी अवेलेबल ऑन एक्सेल. सॉफ्ट कॉपी में आपके AIS पोर्टल पर इनेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह. तो आपको मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा. यू कीप ऑन एंटरिंग द मार्क्स एंड ऑटोमेटिकली द एनालिसिस विल बी डन. जी Next slide please. These are this is basically the test series result analysis sheet or that need to be maintained in the teacher's panel as well, ठीक है. और ये आपके पास जो फाइल का मतलब अगेन ये फाइल जो मैक्सिमम है जैसे कि आपका मिनिमम आपके पास 2 है, ठीक है. और ये जो है वो हर सब्जेक्ट टीचर जो है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और फिर एट द एंड every performance जो है वो in the form of percentage में मेंशन करेगा. सेक्शन हैड टू इंक्लूड follow up और प्लीज माइक म्यूट रखिए. इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी. बाकी सब भी जो है वो कंफर्टेबली सारा सेशन सुन सकेंगे. सो प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट. kindly be mindful that whatever tests and whatever plans you are following, e-sheet or the OMR sheet है that must be on PIC pattern. Whatever pattern they are following उसी को आप follow करें, ठीक है. और for Islamiyat जो है वो access and price policy follow करें और remedial और retest जो है that is the need that need to be held only for those students who don't appear or perform their in first term exams, but for only genuine reasons. जी नेक्स्ट प्लीज. Then we have preparatory anti-test series. PETS basically is a certification program that has been offered by us at APSACS for the students, ठीक है. और updated MCQ for PETS are also uploaded on AIS portal और plus जो national curriculum 2022 के accordingly जो updation है that is अभी जो development phase में है, ठीक है. और ये जो चीज है PETS के लिए basically जो आपके available time slots है ये आपके पास जुलाई में जो आपकी जो पास आउट सेकंड ईयर है, ठीक है. उसके लिए आप जुलाई में यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को, प्लस वर्किंग सैटरडेज को आप कर सकते हैं, ठीक है.
और जो जब आप टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके जो अदर एंड ऑफ द डे है उसमें भी आप उसको जो फॉलो कर सकते हैं पेट्स के लिए बेसिकली। और इसके लिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगी, साइमा ने तो कहा है कि कर सकते हैं, बट आई हाँ जी एम्फसाइज कि आपको करना चाहिए एज अ सेक्शन हेड। प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि once your second year is free from the examination and practical exams, please call them to the school, give them ample time period to go over or to but just to go through all these pets MCQs. They should be given ample practice to attempt these MCQs within the given time period. इसके लिए आपको थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। They have been your students, तो उनके लिए ही हमने ये सब कुछ डेवलप किया, और एटलीस्ट रिमेन अवेलेबल फॉर देम कि अगर वो पेट्स के एमसीक्यूज घर पर रहकर अटेम्प्ट करते हैं, तो इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, इफ दे हैव एनी क्वेरी, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो एज द टीचर यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट देम। ठीक है, तो चाहे घर पर ही रहकर उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप प्रोवाइड कर दें, बट प्लीज 1 वीक to 10 days का एक सेशन उनके लिए जुलाई के मंथ में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जरूर प्लान कर लें, क्योंकि उनके नम्स का जो टेस्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, अपकमिंग अगस्त में ये होगा, और ये अभी प्रीवियस करिकुलम के अकॉर्डिंगली हो रहा है, नए एलओस के अकॉर्डिंगली नहीं है। सो ऑलरेडी डेवलप्ड ऑल द एमसीक्यूज विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम। अभी भी नम्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, एमसीक्यूज उनके डेवलपमेंटल फेज में है, थोड़ी सी उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आई हैं, हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपनी प्लानिंग में इसको इंश्योर करा सकें। More than 5,000 MCQs have already been cleared on students' portal. नेक्स्ट करें। The day before yesterday, we have meeting with NAMS. So ये उनका जो current plan है, that would be basically there are 200 MCQs for altogether BSc, that would be 100 MCQs, 30, 30, 30 और 10. The sciences के लिए 30 थे और जो है मतलब जो English के लिए 10 थे। लेकिन जो है अब जो है उनके पास जो plan है, that is basically for percentage wise जो साइंसेस का मेंशन है और साथ जो इंग्लिश के भी MCQs है और प्लस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है that would be there as well। और जो इनका डिफिकल्टी इंडेक्स होगा that would be 20, 60 और 20। और साइंसेस के लिए जो है 70% जो MCQs है that would be recall based, ठीक है, और 30% will be application based। ये मैंडेट है, ठीक है, ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दिस इज द मैंडेट ऑफ नम्स। नम्स इसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट लेगा। प्लस previously there was negative marking as well, but अभी जो उनका प्लान है negative marking जो है वो effectively No negative marking will be done in MCQs. Nums और इसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उन्होंने जो है वो हमारे साथ शेयर किया है बेसिकली फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के लिए जो है डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो मेन वाइज है, जहाँ से आपने जो है MCQs में डेवलप करें, अपने बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस करवाएं। और प्लस उन्होंने एक वेबसाइट की है जो कि mbps.com.pk पे जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें मोर देन 5,000 MCQs हैं, प्लस प्रैक्टिस पेपर्स हैं इस बुक में, और प्लस दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस भी है, और सब्जेक्ट वाइज MCQ पैन जो उन्होंने हर सब्जेक्ट का फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री का और जो है वो इंग्लिश का में मेंशन किया हुआ। सेम वी हैव कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री। प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। फिजिक्स then we have the content list for physics as well। Okay, next slide। For English there is no specified content list because English जो है वो आपकी जो है वो language competency wise जो है वो competency wise जो that will be going to assess, ठीक है। और जो इंग्लिश का जो फ्रेमवर्क होगा that will be totally on Cambridge International, और जो आपका जो है वो और डिस्ट्रिक्टलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंग्लिश को असेस किया जाएगा MD-CAT और E-CAT के एंट्री टेस्ट। So लैंग्वेज की स्किल बेसिकली असेस होंगी आपकी। कैम्ब्रिज की बुक्स अगर कोई है अच्छी, रन एंड मार्टिन बहुत अच्छी है, उसके जो रन एंड मार्टिन में जो आपके पास ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स है, अगर बच्चा उसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेता है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट स्टूडेंट इन अ वेरी बेटर वे। बच्चों काइंडली लाइक इसका एसएसपी टेस्ट वगैरह में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, और नेगेटिव बेंचमार्क सेट और गेट के टेस्ट में जो है वो जवान है वो भी टेस्ट दिखाई दिया होगा। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली जो क्या फॉर्मेट हुआ करता है, तो वहां से बच्चों को जो प्रैक्टिस करवाएं, और इनकी जो बेसिकली जो फर्दर कैटेगराइजेशन है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और सिंगल सीरीज हो सकती है, लेटर सीरीज हो सकती है, लॉजिकल डिडक्शन क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कोर्स ऑफ एक्शन उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस भी हो सकते हैं। एक्चुअली 6 ही क्वेश्चंस में आना है, और ये 6 ही उनके पास कैटेगरीज है, तो एक्सपेक्टेडली 1 पर कैटेगरी तो क्वेश्चन होगा ही होगा।
Previously they were 15 और दाव में आपको further reduce करके इसको 6 कर दिया. Next slide. हाँ जी, now coming towards the important part, that is the policy matters. Federal board कुछ latest चीजें हैं, कुछ way forward हैं और कुछ already existing है. One by one we are going to go through all these policy matters. जी. The first one is at our end, that is the promotion detention criteria. Already told you the basic criteria is 40% marks in first term examination, and beside that 75% attendance before first term examination. So ये तो आपका basic mandate हो गया. If a student is unable to secure 40% marks or remains absent during the first term examination, in that case it is at the discretion of the school administration to take the retest or plan the remedial sessions for such student and send their admission with the double fee or triple fee as due appropriate. So वो as a management आप decide करेंगे. लेकिन जैसे आपको शुरू में बताया था, please no detention at all. School management is responsible to ensure the academic improvement of all students who are registered with you at SSC and HSSC level. अगर आपने उनको identify करना था या कहीं पर उनको पकड़ना था, तो that actually is supposed to be your class assessment 1, not first term examination. आप वहीं पे आइडेंटिफाई करें, वहीं पे पेरेंट्स को कॉल करके इनके बारे में वार्न करें. वार्न से मुराद मतलब उनको थोड़ा सा इंडिकेट करें कि आपके बच्चे की एकेडमिक्स एज पर क्राइटेरिया या एज पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड जा रहा है उसको मीट नहीं कर रही, इससे प्रॉब्लम होने का डर है. सो वहीं से उसके लिए एक प्लान, एक एक्शन प्लान, रिमीडियल प्लान या एकेडमिक इंप्रूवमेंट प्लान उसके लिए डिजाइन करना शुरू कर दें. यू कैन कॉल देम ऑन सैटरडेज, यू कैन हैव वन एक्स्ट्रा पीरियड फॉर देम, यू कैन हेल्प देम ड्यूरिंग द असेंबली पीरियड, जो टाइम पीरियड होगा. So as an administration, multiple steps can be taken up. But again, मैं बार-बार ये आपको बात बता रही हूँ, not after first term examination. That is right from the first day student gets registered with you. ये वो बच्चे हैं जो अगर outsider थे, तो आपके पास 70-80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर SSC में आए हैं. अगर आपके अपने बच्चे थे, तो more than 50% मार्क्स क्लास 8 से लेकर आपके पास एंटर हुए हैं. So possible नहीं है कि अब वो 9th में आकर 40% मार्क्स भी ना ले सकें. और अगर नहीं ले सक रहे, तो जो पिछले 4-5 महीने थे उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों कोई स्टेप नहीं उठाया. सो यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म के बाद आप उन्हें पकड़ेंगे, तो एक्चुअली ये आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी एक्टिव एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द एकेडमिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. सिमिलरली जो आपको बताई गई है डबल ट्रिपल फी वाली बात, वो भी यहीं पर आ जाती है. एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव द राइट, आप ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने से पहले आपके पास पीछे पूरे फर्स्ट टर्म के ऊपर आपकी की हुई वर्किंग क्लियर होनी चाहिए. आपने कितनी दफा एकेडमिक प्लान के अकॉर्डिंगली उस बच्चे के रिमीडियल्स लिए, आपने उसके कितने रीटेस्ट दिए, आपने कब कब बुलाकर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया. ओनली देन यू कैन प्रोसीड विद द डबल और ट्रिपल फी. अगर आपने पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया या आप बताना चाहते थे पेरेंट आपके साथ एंगेज नहीं हुआ, तो क्या कोई रिटर्न इंटीमेशन पेरेंट को गई. सो ये चीजें मैटर करेंगी. इसको आपने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत फ्रॉम द सेशन स्टार्ट लेकर चलना. जी आगे चले. नेक्स्ट वन. एज फार एज सेकेंड एनुअल एग्जाम्स आर कंसर्न, हमें बहुत सारी फीडबैक आई है. इसमें सबसे बड़ी फीडबैक ये है कि ड्यूरिंग सेकेंड एनुअल एग्जाम्स जब बच्चे इसमें अपेयर होते हैं तो उनकी रेगुलर एकेडमिक्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. ये वाला पॉइंट हमने आपका फेडरल बोर्ड तक कन्वे किया था, और इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू, जो आपके एग्जाम्स हैं, फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ स्किप हुए हैं. दैट इज इंस्टेड ऑफ गेटिंग द एग्जामिनेशन और होल्डिंग द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मई और जून, नाउ दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. सो इसी तरह ये और मार्च में, टुवर्ड्स मार्च, सेंट्रल मार्च और फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएंगे. इसका फायदा क्या होगा कि जब आपके एक्चुअल फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपके मंथ ऑफ मार्च में होंगे, तो आफ्टर 3 months जो आपके सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन होंगे, दे विल फॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून एंड और जुलाई, और मोस्ट प्रॉबेबली इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो ये एक सेफ मंथ हो जाता है जिसमें अगर आपका बच्चा सेकेंड एनुअल के लिए भी अपेयर होता है, तो आपकी रेगुलर एकेडमिक्स इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही होती है. सो इसको एड्रेस करने के लिए, हमारे ही कंसर्न को, हमारे इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए बोर्ड ने अपने एनुअल एग्जाम्स थोड़े पीछे की तरफ शिफ्ट किए थे. फिर भी आप सेकेंड एनुअल एग्जाम को रोक नहीं सकते, बिकॉज इट इज द प्रोविजन दैट हैज बीन गिवन बाय द फेडरल बोर्ड. फैसिलिटेशन है, ओपन है, आप बाउंड नहीं कर सकते. लेकिन यस, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन डिवाइस योर ओन प्लान एंड SOP फॉर एडमिटेंस टू द सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन. आप कोई क्लॉज डेवलप कर सकते हैं, आपको इंटीमेट कर सकते हैं पेरेंट को
लेकिन ये भी आपने सेशन शुरू होने से पहले पेरेंट को इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने एडमिट कर लिया अपने स्कूल में, साल पूरा गुजार दिया, फर्स्ट टर्म एग्जाम हो गया और फर्स्ट टर्म के बाद उस वक्त आप आके पेरेंट को ये बता रहे हैं दैट हम सेकेंड एनुअल एग्जाम्स अलाउ नहीं करेंगे, या आपका बच्चा सेकेंड एनुअल के लिए नहीं जाएगा, या आपका बच्चा ही सेकेंड एनुअल के लिए जाएगा। सो अब जो भी पॉलिसी डिफाइन करेंगे दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और वो पेरेंट के साथ एकेडमिक सेशन के स्टार्ट में शेयर कर देंगे। अगर उनकी कोई एप्रीहेंशन होती हैं, अगर उनके कोई एतराजात होते हैं, तो दैट वी हैव टू एड्रेस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एज इसको पेरेंट के साथ शेयर ना करें और अपना एक प्लान बना ले, टुवर्ड्स एंड आप पेरेंट को बुलाकर सिग्नेचर्स करवा ले, कहें कि पेरेंट वाज रेडी फॉर दिस। फिर पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं, हमें फीडबैक फॉर्म शेयर करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हमें फोर्सफुली साइन करवाया गया था, वी वर नॉट रेडी फॉर दैट, आवर चाइल्ड वाजंट रेडी फॉर दैट। सो वो फिर बहुत सारे इसके फिर रिपरकशंस होते हैं। सो प्लीज एज एडमिनिस्ट्रेशन अपने इन पॉलिसी प्रोसीजर्स को बहुत क्लियरली आप स्पेल आउट करें और पेरेंट के साथ टाइमली शेयर करें। जी नेक्स्ट वन। According to the board, the candidate who withdraws the candidature from the the candidate who withdraws before the issuance of roll number slip are exempted from the payment for second annual exam. इसको यहाँ पर देने का मकसद ये है कि अभी बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया जिसमें सेकंड एनुअल एग्जाम से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस थे that do they have to pay the full fee or not. So अगर बच्चा अपने फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स की रोल नंबर स्लिप के इशू होने से पहले विड्रॉ कर लेता है, इन दैट केस सेकंड एनुअल के लिए उसको फी दोबारा सबमिट नहीं करानी। लेकिन वंस द रोल नंबर स्लिप इज इशूड, फिर वो चाहे एक पेपर ना दे या सारे पेपर ना दे, वंस ही और शी विल अप्लाई फॉर द सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन, उसे पूरी फी दोबारा सबमिट करवानी पड़ती है। उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, फिर दोबारा से रोल नंबर स्लिप इशू होती है, मतलब उसकी पेमेंट्स वगैरह उसकी पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। सो ये पॉलिसी आप अपने पेरेंट्स को ये भी क्लियर बता दें क्योंकि इससे रिलेटेड भी फिर हमारे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं। जी नेक्स्ट वन। Now coming towards the report card or the progress report of the students. G. These three components will be reflected. The first one is the academic progress report, जो कि फेडरल बोर्ड के लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस ग्रेड जीपीए सीजीपीए के अकॉर्डिंगली होगी। The second one is the online component and it will reflect the holistic development record of a child, जिसमें बच्चे की 21st century skills के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डोमेन्स में उसकी क्या मतलब आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज क्या है वो रिफ्लेक्ट की जाएंगी। And the last one will be the achievement record in the sports and CCS, especially for those acknowledge करने के लिए उन बच्चों को who participate in sports at FBIC or federal board or inter board level. So उनके proper report card पे उनके achievements को reflect किया जाएगा। जी next one. Grading policy is the same one as it has been published last year by the federal board. Same आपके grades हैं और सेम आपके ग्रेड्स की रिप्रेजेंटेशन है, वही जीपीए सीजीपीए सिस्टम है जो कि बोर्ड ने ऑलरेडी स्पेल आउट किया हुआ। जी नेक्स्ट करें। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट इन व्हिच वी हैव ट्राइड टू शो यू दैट द मार्क्स ऑफ फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट जो आपकी क्लास असेसमेंट्स हैं एंड फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस दे विल अकोमोडेट एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स रिसीव्ड आपकी फाइनल परसेंटेज टोटल मार्क्स में से निकलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट असेसमेंट क्लास असेसमेंट नहीं दी तो उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल रिजल्ट पे ना आए। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका बच्चा ये असेसमेंट सीरियसली ले, अदरवाइज इनको आप शुरू में ही बता दें कि फिर आपको टुवर्ड्स एंड डबल फी या ट्रिपल फी के साथ एडमिट होना पड़ेगा या आपका एडमिशन जाएगा। सो वहां पे फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। सो ये ओरिएंटेशन उनकी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन दे रहे। जी नेक्स्ट वन। This is the reflection of holistic development record checklist. ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी, AIS पोर्टल पर अवेलेबल होगी। आप लोग एज टीचर्स बैठेंगे और बच्चे के डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव और थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली जो जिस तरह बिहेव करता है, हर चीज से रिलेटेड चेकलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। यू विल टेक द गिवन कॉलम, जो भी उसके ऊपर अप्रोप्रिएट होगा and that remark will be reflected in their progress report जो ऑनलाइन वर्जन में है। ठीक है, एक चीज को प्लीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक कॉलम हमने नेवर का भी लिखा हुआ है। जब आप नेवर को मार्क करेंगे सो इन दैट केस यू नीड टू हैव प्रॉपर एविडेंसेस दैट
a child actually never participated or never reflected the given indicator. Because ये चीज जब पेरेंट को ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल होगी तो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि आखिर कैसे आप कह सकते हैं कि माय चाइल्ड या माय वार्ड never applied critical thinking skills to the real life scenario. How can you say that? For that, you need to have a proper answer with you. So please be very realistic while entering tick or cross in the given columns. और ये हर बच्चे के लिए होगा ऑनलाइन वर्जन में. This is going to help them out in their university placements. Plus उनको वैसे भी आगे जहां पर वो जाएंगे लाइफ में उनकी ये स्किल्स रिफ्लेक्ट उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में हुई है, उनके डोजियर्स में भी रिफ्लेक्ट होगी. जी next one. Next. Now coming towards the secrecy policy, already chapter is there in the policy booklet. You already know about it. Next one. The centralized papers are uploaded on the day of examination, sometimes 2 hours prior to the exam, sometimes 1.5 hours prior to the exams, depending upon the length and the date sheet. The date sheet and the block status are shared on the website. The same to be followed without any change in it. Parties and principals are responsible to ensure secrecy as per the instructions shared in our chapter number 2. Strict actions will be taken against all those who will be found violating the secrecy policy by any at any level. Now coming towards the record of the paper, this is the same policy as was shared last year. School administration is required to keep the record of attempted papers in their respective exam cell for 1 year. After the PTM till pre-board, all attempted assessments and exam papers must be handed over to the students immediately after their pre-board for the preparation of upcoming board examination. आप किसी किस्म की कोई हार्ड कॉपी अपने पास नहीं रखेंगे. However, जब evaluation टीम आती है वो आपकी checking marking standards देखना चाहती है तो हमें evidences की जरूरत होती है. So in that case, you will have a scan copy, at least 6 to 8 scan copy of the papers, including the below average, above average, and average students in the section head office. Soft copy आप रखेंगे, आप photocopy बेशक मत कराएं, आप उसकी soft copy scan कराकर अपने पास folder में year after the year, term exams, pre-board exams for session this, class this करके आप maintain करते रहें. जो भी टीम आएगी, जब उन्होंने ये exams paper देखने होंगे, checking marking standards को evaluate करना होगा, they can always refer to these e-folders. लेकिन बच्चों के प्री बोर्ड से पहले सारे टेस्ट आप उनके हवाले करेंगे because it is going to help them out in their preparation, realistic preparation for the board examination. तभी उनको अपने एरर्स भी पता लगेंगे और उन एरर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको कैसे करेक्टली अटेम्प्ट करना है उनको वो भी आइडिया हो जाएगा. जी नेक्स्ट करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑल नो हमने पॉलिसी में भी दिया, इससे पहले हम अपने लेटर्स के थ्रू भी आपको बहुत दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं. Every person who is dealing with the examination process, teacher, exam coordinator, section heads, they have to fulfill this affidavit or undertaking. इसमें हमने आपको clearly खास तौर पे जो clause 8 है आपकी, that once you sign this affidavit, you understand and affirm that you abide by the policy procedures which are related to the secrecy, and in case you are found violating any code of conduct, you will be responsible. And any formal or legal action can be taken against you. तो इस 8 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस दफा सीरियस एक्शन लेंगे इन केस अल्लाह ना करे अगर हमारे पास किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी रिपोर्ट होती है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप में से जिस किसी का भी मार्कर, इसको हम क्या कहते हैं मार्कर पे, हाँ जी मार्कर ऑन हुआ है, प्लीज इसको आप डिसेबल कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा जो रेगुलर हमारा सेशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. Now there are few instructions related to the e-marking process. अभी already board के एग्जाम्स हो रहे हैं और उन बोर्ड के एग्जाम्स के बाद अब e-marking का प्रोसेस शुरू हुआ है. हमारे बहुत सारे टीचर e-marking के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं at SSC level and very soon in HSSC level as well. ये लिंक आपके साथ जैसे ही सेशन अभी towards end आएगा हम ये लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे. प्लीज इस लिंक को ओपन करके e-marking के प्रोसेस को एक दफा तसल्ली से देख लें और try to avoid any error while marking the papers. It's not about कि सिर्फ हमारा ही बच्चा है, कोई भी बच्चा जिसका पेपर आपके पास आता है वो आपके पास इमानत होता है, तो उसको आपने बहुत प्रोफेशनली चेक करना है. नेक्स्ट पेज पे जाइएगा.
इस तरह की एक जो स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाती है जिसमें जब आप मार्क्स दे रहे होते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। सो इन ऑप्शंस को पढ़े बगैर, बच्चे का रिस्पॉन्स पढ़े बगैर मत क्लिक कीजिएगा। फिर जो रीकाउंटिंग केसेस आपके पास आते हैं हर साल, या जो आपके पास बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, उनमें मेजर प्रॉब्लम यही हो रहा होता है कि रॉन्ग एंट्री हो जाती है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनर, और वो रिपोर्ट होता है बाद में जिस वक्त उसकी रीकाउंटिंग के केस में हो जाता है। सो प्लीज बी वेरी प्रोफेशनल व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये वेबसाइट की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चेकिंग शुरू करने से पहले इसको एक दफा जरूर देख लीजिएगा और इंश्योर कराएं कि जितने स्टेप्स इसमें आपको बताए गए हैं आप उनको रियलिस्टिकली फॉलो करें। जी, नेक्स्ट वन। This is another very important thing. Please, whenever we share the link of e-kachahiris with you, you are requested to listen to the content shared in the e-kachahiri, because sometimes very important information related to upcoming examination, related to policy procedures, related to practical based assessment, or the content that is going to come in the assessment, anything that is related to federal board is shared in these live sessions. So once the link is shared with you, it is the responsibility of the section head to play and make sure that each and every person of the senior section listens to these e-kachari sessions and note down the main points with him or her. जी, आगे चले. Now, after the policy procedures, there are a few things that APSACS has taken the initiative, though they have not been recommended by board yet. लेकिन हमने आपको इसे recommend कर दिया ताकि हम किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करें इन केस अगर बोर्ड कुछ महीनों बाद जाकर कोई डिसीजन ले। So 3 to 4 steps are there. The first one is question item bank development. नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। इसमें ये फॉर्मेट हमने आपको दिया है जिसमें हर SLO के अगेंस्ट आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कोशिश करेंगे कि हर LO से रिलेटेड एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आप ड्राफ्ट करें। ये हमने आपको लास्ट ईयर आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया था and it was requested to start developing the short questions, long question and MCQs per SLO wise for each subject. You were provided with 3 months and you were requested to submit the data to the AAD department. Next kare. So far we have received the QIB from the given 11 regions. Rest of the regions have not submitted us with the data. So यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो QIB हमारे पास बन रहा है ये ओवरऑल पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक फिर सिर्फ उन्हीं रीजन के साथ शेयर किया जाएगा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो इस QIB का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, because this QIB, a huge question bank, is going to help out the teachers while planning their class assessments as well as while planning their lessons inside the class. उसमें जो आपकी रेगुलर brainstorming sessions होते हैं या आपकी एक्टिविटीज होती हैं या ड्यूरिंग द लेसन प्लान आप क्वेश्चंस करते हैं, this is going to help you out. So अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, you will not be the part of QIB team. The final deadline is 31st of May, and after that हम QIB के ऊपर वर्किंग करके ग्रुप बनाकर इनको इनेबल कर देंगे। जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा, that will not be the part of QIB team. जी, नेक्स्ट करें। The next one is listening, speaking and reading skills. बोर्ड ने अभी तक किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या कोई SOP डेवलप नहीं की। मैं आज भी बोर्ड की मीटिंग से होके आ रही हूँ। सो फार अभी उनका इसके ऊपर कोई प्लान नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड करिकुलम दैट इज NCC 22-23 there are few LOs related to listening, speaking and reading. So what we have decided is that बोर्ड करे या ना करे, हम अपनी 9th और 1st ईयर में, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, for class 9th and 1st year we are going to hold the listening, reading and speaking assessment as per the slots indicated in the scheme of work. जहां पर आपका येलो फॉल करेगा, टीचर will assess the student accordingly. Yes, इनके मार्क्स हम आपके AIS पोर्टल पे भी नहीं करवाएंगे, टोटल बच्चे की एवरेज या परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट विल गेट एन आइडिया कि उन्होंने लिसनिंग और स्पीकिंग को कैसे करना है। टिल 8th ये होते आए हैं, इनकी लिसनिंग भी होती आई है, इनकी स्पीकिंग भी होती आई है, सेस इनकी रीडिंग भी सेस होती आई है। सो दिस इज नथिंग न्यू फॉर देम। However, 9th, 10th और 1st ईयर के अकॉर्डिंगली, नॉट 10th सॉरी 9th और 1st ईयर के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सो वो आप अपने लेसन प्लान का हिस्सा बनाते हुए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कंडक्ट करा देंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने बच्चे आगे करें, इंग्लिश के लिए इंस्ट्रक्शंस आपकी पॉलिसी में डाल दी थी
उर्दू की इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल फेज में थी, नाउ दे आर कंप्लीटेड। इंशाल्लाह मंडे को हम लेटर के थ्रू उर्दू की लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की असेसमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं या टूल्स हैं जो इसमें आपको यूज किए जा सकते हैं, विल बी शेयरिंग द डिटेल लेटर विद यू। तो हमने उर्दू का काम भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। जो आपको असेसमेंट रिकॉर्ड शीट्स दी गई हैं उसमें येलो कंपोनेंट रिफ्लेक्ट्स द इनफॉर्मल असेसमेंट, और यहाँ पर सुनना, बोलना और पढ़ना, इसी तरह लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग के आपके पास कॉलम्स दे दिए गए हैं जहाँ पर आप डेट वाइज अगर कंडक्ट कराते हैं तो आप इसकी एंट्री करेंगे। 3 columns are there. This is the maximum assessment that you are supposed to take. You can also take one assessment per term as well. पहली first term में ले लें, दूसरी second term में ले लें, 2 भी बहुत है, but don't go for one assessment. ठीक है, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, बच्चे को एक से कभी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। So it is recommended that at least 2 assessments should be taken, one per term, for each of these skills mentioned. और scheme of work में भी ये mention हुए हैं, 1-2 दफा बच्चों को प्रैक्टिस कराएं and then you can mark their assessment, or you can simply have the record of all these. जी आगे चले। Now coming towards another very important part, that is the AI assistant, जो हमने आपको शुरू में academic package में बताई थी. This is going to facilitate not only the students but also the teacher while preparing their lessons. कैसे करेंगे? नेक्स्ट पेज करेंगे बेटा। हम आपके AIS पोर्टल पर भी इसको इनेबल करा देंगे। So far, once you go to the federal board website, towards the extreme left down side, आपको यहाँ पर ये एक नजर आएगा, आइकन नजर आएगा। आप जब इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज करें, तो आपको इस फॉर्म में FBIC AI bot अपीयर हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर यू विल एंटर योर नेम एंड योर सिटी or school, and then you will proceed. The next part will be the question that you want to ask. Once you will enter the question, or once you will enter the SLO and you want to have the explanation of that SLO, तो फिर आप लिखने के बाद जब एंटर करेंगे तो this AI bot is going to help you out according to the mandate of FBIC in the particular subject of SLO. ये FBIC का ऑलरेडी ट्रेड AI bot है और उन्होंने अपने SSC और HSSC के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसको डेवलप करवाया और ट्रेन कराया है। तो यहाँ पर जब बच्चा अपना क्वेश्चन लिखेगा या टीचर अपना क्वेश्चन लिखेंगी, जब कोई भी टीचर, तो फिर उनको उसी SLO के अकॉर्डिंगली आंसर ये AI बोर्ड रिप्लाई करेगा, क्योंकि ये ट्रेन है, ऑलरेडी फेडरल बोर्ड इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, दे आर ऑलरेडी ट्रेन। नेक्स्ट कीजिएगा। वी आर ऑल्सो गोइंग टू अटैच दिस AI बोर्ड टू आवर स्टूडेंट AIS पोर्टल एज वेल, ताकि स्टूडेंट ने जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन है या कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का उसको आंसर चाहिए, तो दे कैन ऑलवेज रेफर टू इट। एंड एज अ टीचर आपके AIS पोर्टल पे भी हम इसको अवेलेबल करवा देंगे इंशाल्लाह गर्मियों की छुट्टियों से पहले, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, ताकि आप अपने नेक्स्ट प्लानिंग में इस AI बोर्ड की मदद से डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट MCQs, इवन अगर आप यहाँ से MCQs डेवलप करवाना चाहते हैं तो वो आपके LO बेस्ड MCQs भी आपको डेवलप करके दे देगा। क्लास असेसमेंट्स, क्वेश्चंस, QID की डेवलपमेंट के लिए आपको जो चाहिए अपने LO के अकॉर्डिंगली यू कैन ऑलवेज ड्राफ्ट अ क्वेश्चन यूजिंग दिस AI बोर्ड हेल्प। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल दैट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर पीपल। जी नेक्स्ट कीजिएगा। फर्दरमोर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर प्री प्रिपरेशन का भी आइकन मौजूद है। वंस यू गो टू द स्टूडेंट आइकन, वहां पे क्लिक करेंगे, प्री प्रिपरेशन एलिमेंट्स आपके पास पोर्टल आ जाएगा। क्लिक दिस पोर्टल, नेक्स्ट पेज पे जाएं, and there are series of videos and series of assessments available at SSC and HSSC level in different subjects. Now, as a teacher, you can always help your students prepare for all these subjects once he or she gets absent, और अभी आपके पास यहाँ पर समर का स्लॉट आ जाएगा, तो ड्यूरिंग समर स्लॉट जो भी कंटेंट आप उनको पढ़ने के लिए देंगे, you can always refer to these videos कि आप बच्चे को घर पे बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं असेसमेंट को। और इवन टीचर्स भी, खासतौर पे रिमोट एरिया के जो टीचर्स बैठे हैं, यू कैन ऑलवेज लिसन टू दीज वीडियोस बिफोर कमिंग टू योर क्लास। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बनी हुई वीडियोस हैं। आई हैव सीन माय टीचर्स हु आर डूइंग एक्सीलेंटली एंड हु आर डूइंग फार मोर बेटर एज कंपेयर्ड टू द वीडियोस शेयर्ड ओवर हियर बाय द फेडरल बोर्ड, लेकिन ये मिनिमम बेंचमार्क है। एटलीस्ट जब आप इनको सुन लेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा या किस स्कोप के अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड इन योर लेक्चर। सो ये मिनिमम रेफरेंस है, इसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियोस। जी
सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत गर्दिश करी है that by 2025 Federal Board is going to assess all the papers or mark all the papers by AI powered marking system. किसी हद तक ये न्यूज करेक्ट भी है, दे आर वर्किंग ऑन इट, स्टिल ये उनकी डेवलपमेंटल रिसर्च और डेवलपमेंट का हिस्सा है। आज पहली फेडरल बोर्ड में मीटिंग हुई थी, वहां पर उनके जो सेक्रेटरी एजुकेशन है फेडरल बोर्ड में, उनसे बातचीत के दौरान ये पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल फेज में है, शायद 2025 तक ये किसी हर सब्जेक्ट के लिए लॉन्च ना हो। ऑल्टरनेट प्रोसीजर हो रहा है, ई मार्किंग भी हो रही है और उन्हीं ई मार्क पेपर्स का एआई पावर्ड मार्किंग सिस्टम के थ्रू भी उनको गुजारा जा रहा है, ताकि दोनों का एनालिसिस किया जा सके, एक्यूरेसी उनकी चेक की जा सके कि कितने एक्यूरेटली पेपर चेक किए जा सकते हैं। लेकिन 100% shift by 2025 so far is not possible. They are working towards this, and very soon they are going to have their AI-enabled system for the marking of the papers. ठीक है? तो ये न्यूज़ आप समझ ले 25 से 30% दुरुस्त है, not 100%. नेक्स्ट करें। Based on this thing, इसी सोशल मीडिया को सामने रखते हुए हम EIMS का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट और 2 और 3 सब्जेक्ट्स के लिए हम इसको लॉन्च करेंगे, और वो भी किसी 1 या 2 रीजन्स में, नॉट अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है, हम भी इसको अपने डेवलपमेंट और रिसर्च का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो कुछ एक्सटर्नल टूल्स सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको चेक कराएंगे, विल सी द एफिशिएंसी, द प्रिसीजन ऑफ दिस सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च इट प्रॉपर्ली। लेकिन अभी इस साल हम एक पायलट रन जरूर करेंगे, और उसका रिजल्ट जो आप लोगों ने पेपर चेक किए होंगे, आपके टीचर्स ने पेपर चेक किए होंगे, उसके अगेंस्ट हम आपके साथ वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे, वो भी शेयर करेंगे। जी, टीचर ट्रेनिंग, अभी ये आपका ओरिएंटेशन सेशन था, उसके बाद इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ अगस्त वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचिंग स्टाफ ऑन द SLO बेस्ड एग्जाम्स, चेकिंग मार्किंग स्टैंडर्ड्स, रुब्रिक जनरेशन एंड द लेटेस्ट FPIC पॉलिसी प्रोसीजर। सो वो हमारा होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम फेस टू फेस सेशंस कंडक्ट कराना शुरू करें, विल मूव फ्रॉम रीजन टू रीजन, देखते हैं अभी इसके बारे में अभी क्या प्लान बनता है। लेकिन आप लोगों ने एज अ सेक्शन हेड जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स हम आपको यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, खासतौर पे इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद, सो प्लीज मेक श्योर कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर ये सारी चीजें रीकैप करते रहें, और अपने सिस्टम में आप उसको रिवाइज करते रहें, बार बार इसको चेक करें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें, और इसको ट्रू लेटर और स्पिरिट के अंदर आप इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर असेसमेंट पॉलिसी बुकलेट में भी, नेक्स्ट पेज पर, असेसमेंट पॉलिसी बुकलेट के अंदर भी हमने स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग के नाम से एनेक्सर्स अटैच किए हैं, और डिफरेंट डोमेन्स यानी पेपर सेटर्स जो आपके असेसमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपकी मार्किंग क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली हैं, जो इन्विजिलेशन में आपके लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने, डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने रिफ्लेक्ट कर दिया है। It is the school administration and section head who has to ensure that all these trainings are conducted in the school in order to implement the policy procedures. Correct. G. Next page. Thank you so very much. This is all from our side.